Jai Narayan, good morning to all my dear students and welcome to class 11th online chemistry classes. So student, I hope that you all are safe and you are taking care of your loved ones, of your neighbors, of your family and other friends also. Please stay at home and stay safe. So student, before starting the topic, I just want to discuss one thing with you all. Every day beta is a new day, so I hope you need to set the target for every day. I'm not talking here about the long term goals which you have set, but I am just simply saying that please set a single day target. That is much more effective than setting a long term goal. अगर मैं बेटा आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझाऊं तो ये इस तरीके से होता है। सपोज़ आपने एक दिन का टारगेट आज की डेट का सेलेक्ट किया कि मुझे आज केवल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी भी तरीके से सीखना है। अब इस टारगेट को आप सोने से पहले या सोते समय या मॉर्निंग में उठते समय आप सेट कर लें अपने माइंड में कि आज मैं इसको करके तभी कुछ करूँगा। तो इस टारगेट को आप आज की डेट में अगर अचीव कर लिए तो ये बेस्ट थिंग है आपके लिए। और इसके कॉन्टिन्यूएशन में आप पर डे टारगेट सेट करते चलिए अलग अलग चीज़ का और उसको पर डे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इससे ये होगा कि आपका वो टारगेट धीरे धीरे करके पूरे जितने आपके लाइफ के टारगेट हैं साल भर के वो अचीव होते जाएंगे और एट लास्ट आपको ये दिखेगा कि आपका लॉन्ग टर्म जो गोल था वो छोटे छोटे ब्रेक्स में जैसे कि आपने हर्डल्स को क्रॉस करते गए और लॉन्ग टर्म गोल आपका बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप शॉर्ट टर्म गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट करिए, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे। स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू solve a numerical. Suppose an electron it jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1. We have to find its energy and wavelength of emitted radiation. Energy and wavelength of emitted radiation. Okay, so we know the formula, that is delta E is equal to E2 minus E1. Now we have also calculated energy of the nth, that is equal to minus 13.6 into Z square by N square electron volt. So we are going to use this formula. Here we know that N is equal to 2 to 1 jump. Electron is jumping from N is equal to 2 to N is equal to 1. So we are going to draw a diagram. This is nucleus, this is first orbital and this is second orbital. Suppose this is N is equal to 1 and this is N is equal to 2. An electron jumps from N is equal to 2 to N is equal to 1. While doing this, an electron will emit radiation. This is radiation, and this we have to calculate when it jumps from N is equal to N is equal to 1. So delta E, that is equal to E2 minus 13.6 into 1 by 1. Why we have used 1? Because Z, that is hydrogen atom. hydrogen atom का बेटा Z 1 होता है, atomic number hydrogen का 1 है. N का square, N square, that is what here is N square? E2. तो second means N is equal to 2. 2 का square, then minus of minus 13.6 into 1 by 1 का square. Now if we calculate this, minus minus will become plus, so 13.6 is the common, or we can simply say minus minus plus and this. So plus of 13.6, 1 by 1 will be 1 minus 13.6 into 4, that is equal to 13.6 divided by 4. So it will give you 10.2 electron volt minus 10.2 electron volt, and this is the what we have calculated, energy. Minus 10.2 electron volt is the energy. Now to calculate the lambda we have formula, that is E is equal to hc by lambda, where E is the energy of waves, h is the Planck's constant, बेटा जानते हैं हम इसको प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, एंड यहाँ पे ये जो लैम्डा है ये आपका वेव लेंथ है। सो बेटा इसको अब यूज़ करते हैं। हमारा देखिए यहाँ पे आंसर minus 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसको रब करता हूँ सो दैट आई कैन कैलकुलेट हियर ओनली।
देखिए अब जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो एच सी, यहाँ पे एच सी दिख रहा है, एच सी एक कांस्टेंट है। एच सी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके तो 12375 एंगस्ट्रॉम आएगा। क्लियर है ये? तो इस फॉर्मूले को हम और मॉडिफाई करेंगे तो E इज़ इक्वल टू 12375 बाय लेमडा, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारा ईजी हो जाएगा। तो E की वैल्यू बेटा मेरी पहले ही आ गई थी, दैट वाज 10.2। E की वैल्यू 10.2 आई थी ना बेटा, तो E की वैल्यू हम रख देते हैं 10.2 इज़ इक्वल टू 12375 बाय लेमडा एंड दैट इज़ इन एंगस्ट्रॉम। तो अगर लेमडा की वैल्यू चाहिए तो लेमडा इज़ इक्वल टू 12375 अपॉन 10.2 and this value we will get in angstrom because lambda value will be getting in angstrom. So student, I hope यहाँ तक आपको clear on jump from n is equal to n2 to n is equal to n1. We have to calculate it. So here we know that delta E is equal to energy of n2 minus energy of n1, and delta E is also written as Sc by lambda, that is equal to minus 13.6 z square by n2 का स्क्वायर minus 13.6 into z square by n1 square. Okay, now Hc by lambda will give us बेटा minus 13 ये प्लस हो जाएगा, 13.6 अगर हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो 13.6 z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 बाय n1 स्क्वायर minus of 1 by n2 square. Now we are simply going to multiply and divide right hand side by HC. HC से हम right hand side multiply and divide करेंगे। तो अब देखते हैं HC by lambda that is equal to HC 13.6 z square by HC 1 by n1 square minus 1 by n2 square। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक HC से HC कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी ये टर्म बच गया। यहाँ पे बेटा 13.6 और डिवाइड बाय HC, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। 13.6 बाय HC, दिस इज़ द कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ नोन एज R। और ये R क्या है यहाँ पे? R को हम कहते हैं बेटा रेडबर्ग्स कांस्टेंट। व्हाट वी से? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। R क्या कहलाता है बेटा? रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहलाता है। और R की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हो गया? चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे बच्चा मेरा 1 बाय लेमडा दैट इज़ इक्वल टू R z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू हमें जो मिल गई यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको ही हमें याद रखना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए प्लीज़ आप लोग। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 1। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन electron de-excites from n is equal to 2 to n is equal to 1. We know the formula that 1 by lambda is equal to r z square 1 by 1 का square minus 1 by 2 का square. Now 1 by lambda is equal to r of 1 का square because this is hydrogen atom, 1 minus 1 by 4. So this is equal to r into 3 by 4. Now we can write, because we need the lambda, cross multiply, then lambda is equal to 1 by r into 4 by 3, that is equal to 4 by 3 multiplied by 911 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा यहाँ पे 911 एंगस्ट्रॉम कहाँ से आया? तो 1 by r की जो वैल्यू होती है वो 911 एंगस्ट्रॉम होती है, इसको याद रखिएगा। 1 बाय आर की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम होती है, जिससे हमारा लैम्डा आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक छोटा सा समझ रहे हैं कि मैंने n
अगर 2 सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो उसकी जो वैल्यू आएगी लैम्डा की वो कितनी होगी 1216 एंगस्ट्रॉम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज अब हम पढ़ेंगे लाइमर सीरीज़। लाइमन सीरीज़ को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइमन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले देखिए हम समझते हैं एक बहुत ही छोटे से डायग्राम से। सपोज दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 4, दिस इज n इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक सीरीज़ जारी बेटा हमारी। कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट किया 2 से 1 पे आया, नेक्स्ट 3 से 1 पे, 4 से भी 1 पे आ सकता है, 5 से भी 1 पे आ सकता है, इनफाइनाइट से भी 1 पे आ सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं लाइमन सीरीज़, लाइमन सीरीज़। ओके, अगर ऐसा कोई भी डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके n इज इक्वल टू 1 पे आता है तो वो लाइमन सीरीज़ का एक पार्ट है। फर्स्ट लाइन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आया तो वो लाइमन सीरीज़ कहलाएगा, लाइमन सीरीज़ का एक पार्ट होगा। क्लियर है? अब क्यों लाइमन सीरीज़? क्योंकि इनको लाइमन ने डिस्कवर किया था n इज इक्वल टू 1 पे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आते हैं, इसलिए इसका नाम लाइमन सीरीज़ रखा गया। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे। तो अभी हमने देखिए एक टू निकाला था, अगर सेकंड से फर्स्ट पे आएगा कोई भी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? ये तो आपका एनर्जी है, इंक्रीज़ कर रहा है, अपवर्ड जब जा रहा है, एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग द अपवर्ड। ठीक है, तो हमारा 2 से जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 1 पे आया तो इसकी वैल्यू आई थी 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसी तरीके जब 3 से थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट पे आएगा डी एक्साइट होके तो उसकी वैल्यू आएगी 1026 एंगस्ट्रॉम। चलिए हम इसी तरीके आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 रखेंगे तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर इनफाइनाइट से कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 1 पे आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट से मतलब n हमारा इनफाइनाइट है और आ रहा है n इज इक्वल टू 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है तो जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1। वी हैव टेकन जेड हाइड्रोजन एटम 1, आर इंटू 1 हो जाएगा बिकॉज 1 बाय 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। मैंने बोला था कि बेटा 1 बाय आर की वैल्यू जो होती है 911 एंगस्ट्रॉम होती है, तो 1 बाय आर अगर हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो ये 1 बाय आर हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय आर दैट इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। मतलब इनफाइनाइट से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट सेल पे ऑर्बिट पे आता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 911 एंगस्ट्रॉम। ये आपका लाइमन सीरीज़ का एक देखिए छोटा सा बहुत ईजी मैनर में जितने भी उनके सीरीज़ में आपके लैम्डा की वैल्यू आती है वो हमने देख लिया, जो बच गई बेटा वो आप निकाल लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, देखिए अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हम उसको देख लेते हैं। दिस सीरीज़ का इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप फॉलो, मतलब अगर डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा हमेशा कम होगा और लैम्डा की वैल्यू अगर कम है तो डेल्टा ही हमेशा ज़्यादा होगा। आप यहाँ से बहुत ईजिली देख सकते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है आपको? एनर्जी का डिफरेंस जितना बड़ा होगा वेव उतनी ही छोटी मिलेंगी लैम्डा, जितना बड़ा डिफरेंस वेव उतनी छोटी, जितना छोटा डिफरेंस वेव उतनी बड़ी। देख रहे हैं बड़ा डिफरेंस था, इनफाइनाइट से 1 पे आया तो 911 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, छोटा डिफरेंस तो 1216 एंगस्ट्रॉम मिल रहा है। तो एनर्जी का डिफरेंस जितना बड़ा वेव उतनी छोटी है, एनर्जी का डिफरेंस जितना छोटा होगा वेव्स उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगी। लिमिट की अगर हम बात कर लें, बाल्मर सीरीज़ कभी कभी पूछ लेता है लिमिट कितनी बाल्मर सीरीज़ की, लिमिट ऑफ दिस सीरीज़, तो वो आप सिंपली बोल सकते हो 1216 एंगस्ट्रॉम से लेके 911 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 से 3 से 4 से इनफाइनाइट से, बट इट विल कम टू n इज इक्वल टू 1।
n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पे ही वो आएगा, तभी वो वैल्यू आपका लाइमन सीरीज़ में कहलाएगा। n 1 पे जब आएगा तभी लाइमन सीरीज़ होगा। और इसको अगर हम देखें n 1 हो गया, तब हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n 1 का स्क्वायर। दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो ये जो फॉर्मूला आपका बन रहा है, ये अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे लाइमन सीरीज़ का फॉर्मूला बन गया। 1 बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि वो आएगा तो फर्स्ट ही पे ना, और 1 बाय n2 का स्क्वायर, n2 है ये, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर हम कहें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, तो वो है 911 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। सो थैंक यू स्टूडेंट।